हेलो फ्रेंड्स, मु विजय स्वागत करुँच आपण को मो यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कसन करवा पब्लिक फाइनेंस विषय। पब्लिक फाइनेंस पीजी एंट्रेंस एवं नेट एंट्रेंस बहुत इंपोर्टेंट आसे। बहुत बहुत क्वेश्चन पब्लिक फाइनेंस रु आसे, से मुझे डिस्कसन करने चाहूँगी कि आपण जमती अधिक मार्क स्कोर करूँ। तो चलते फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कसन करवा। फर्स्ट क्वेश्चन, when expenditure exceeds total tax revenue, it is called a surplus budget, B balance budget, C deficit budget, D none of these। तो करेक्ट आंसर होची C deficit budget। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a fiscal instrument? A open market operation, B public expenditure, C taxation, D none of this। तो करेक्ट आंसर होची ए ओपन मार्केट ऑपरेशन। तीन नंबर क्वेश्चन, an increase in tax rate when tax base expands represents A progressive taxation, B regressive taxation, C proportional taxation, D none of these। तो करेक्ट आंसर होची ए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। चार नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ फिस्कल पॉलिसी? ए पब्लिक एक्सपेंडिचर, बी CRR, सी SLR, डी बैंक रेट। तो करेक्ट आंसर होची चार नंबर ए पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर करेक्ट आंसर। पाँच नंबर क्वेश्चन, द मेन डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस इज ए एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, बी सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, सी डिश सेविंग, डी बोरिंग। क्वेश्चन होची द मेन डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस इज ए एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। छः नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज अपॉइंटेड इन द ईयर 1952, 1950, 1951, 1949। तो करेक्ट आंसर होची सी 1951। 6 नंबर क्वेश्चन 1951 करेक्ट आंसर 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज अचीव्ड व्हेन ए मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस इक्वल मार्जिनल सोशल बेनिफिट, बी टोटल सोशल सैक्रिफाइस इक्वल टोटल सोशल बेनिफिट, सी एवरेज सोशल सैक्रिफाइस इक्वल एवरेज सोशल बेनिफिट, डी नेट सोशल सैक्रिफाइस इक्वल नेट सोशल बेनिफिट। तो करेक्ट आंसर हो ए मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस इक्वल मार्जिनल सोशल बेनिफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन को 8 नंबर, इन इंडिया personal income tax is levied on individuals by A central government, B state government, C local bodies, D none of these। क्वेश्चन हो जाए इन इंडिया पर्सनल इनकम टैक्स इज लेविड ऑन इंडिविजुअल्स बाय। तो करेक्ट आंसर हो जाए ए सेंट्रल गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट। 9 नंबर क्वेश्चन, income tax is based on the principle of A ability to pay, B willingness to pay, C benefits received, D none of these। तो करेक्ट आंसर हो जी ए एबिलिटी टू पे। करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन को दिबा, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज एसोसिएटेड विथ ए डाल्टन, बी पिगू, सी सेलिगमैन, डी हिक्स। तो करेक्ट आंसर होची ए डाल्टन। करेक्ट आंसर।
Next question. Which is not the characteristic of a tax? A. No quid pro quo. B. Compulsory payments. C. Non-compulsory payment. D. Punishment of tax evader. The correct answer होची C. Non-compulsory payment. 12 number. Special assessment means A. General tax on all people. B. Gift tax. C. A tax for specific benefit conferred. D. None of these. The correct answer होची C. A tax for specific benefit conferred. Next question, 10 number question. Who is the exponent of the law of increasing state activities? Who is the exponent of the law of increasing state activities? The correct answer होची Wagner. B correct answer Wagner. B Wagner. 14 number question. Maximum welfare principle of budget determination is associated with A. Adam Smith, D. Ed Seligman, C. H. Dalton, D. R. Musgrave. The correct answer होची D. Richard Musgrave. Correct answer Richard Musgrave. 15 number question. The Kelleher proposals are concerned with A. Recommendation for reforms in the power sector. B. Recommendation for tax reforms. C. Guidelines for the privatization of public sector undertakings. D. None of these. The correct answer होची B. Recommendation for tax reforms. Correct answer B. Recommendation for tax reforms. 12 number question. Value added tax is A. Direct tax. B. Indirect tax. C. Progressive tax. D. None of these. The correct answer होची D. B. Indirect tax होची. Value added tax is indirect tax. Next question. In the case of direct tax, impact and incidence are on 17 number. In the case of direct tax, impact and incidence are on different person. A. B. Same person. C. Sellers. D. None of these. The correct answer होची B. Same person. 18 number question discussion करिया. The direct violation of tax law is called tax evasion, tax avoidance, C. Tax rebate, D. None of these. The correct answer होची A. Tax evasion. 19 number question. The final resting place of the burden of tax is called tax avoidance, B. Tax evasion, C. Impact, D. Incidence. The correct answer होची incidence. Correct answer incidence. 20 number question. Incidence of tax refers to A. Initial resting place of the burden of tax. B. Final resting place of the burden of tax. C. Both A and B. D. None of these. The correct answer होची B. Final resting place of the burden of tax. B. Correct answer. Next question, 21 number. Which of the following tax is the most likely to be regressive? 21 number question. Which of the following tax is the most likely to be regressive? A. Sale tax on mobile phone. Excise duty on coercion. B. Import duties on electronics goods. D. Entertainment tax.
तो करेक्ट आंसर होची बी एक्साइज ड्यूटी ऑन करेंसी। 22 number question. Impact of tax refers to A. Initial resting place of the burden of tax, B. Tax evasion, C. The final money burden of tax, D. None of these। तो करेक्ट आंसर होची A. Initial resting place of the burden of tax। Next question. Fiscal policy is the policy of A. RBI, B. NABARD, C. Government, D. All of these। तो करेक्ट आंसर होची C. गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करिया। द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ए. सेल टैक्स, बी. इनकम टैक्स, सी. एक्साइज ड्यूटी, डी. टोल टैक्स। तो करेक्ट आंसर होची बी. इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करिया। 25 नंबर क्वेश्चन। इफ द रेट ऑफ टैक्स फॉल्स with an increase in income, it is called A. proportional tax, B. progressive tax, C. regressive tax, D. none of these। तो करेक्ट आंसर होची C. regressive tax। नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ A. monetary policy, B. fiscal policy, C. ट्रेड पॉलिसी, डी. एक्सचेंज रेट पॉलिसी। तो करेक्ट आंसर होची बी. बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फाइनेंस वाज डेवलप्ड बाय J.M. Keynes, B. A.P. Lenox, C. Calders, D. Pigou। तो करेक्ट आंसर होची बी. A.P. Lenox करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। इन पब्लिक फाइनेंस शिफ्टिंग रेफर्स टू A. imposing tax, B. avoiding of tax, C. shifting of tax burden from one person to another, D. none of these। तो करेक्ट आंसर होची सी. शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। 29 नंबर क्वेश्चन। द मॉडर्न स्टेट इज लेसिस-फेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट, एरिस्टोक्रेटिक स्टेट, डी. पॉलिसी स्टेट। तो करेक्ट आंसर होची बी. वेलफेयर स्टेट। तीस नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मॉसग्रेव द मेजर फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस आर ए. allocative function, B. distributive function, C. stabilization function, D. all of these above। तो करेक्ट आंसर होची डी. all of the above। 31 क्वेश्चन। Who was the first to recommend the adoption of an expenditure tax for India? Who was the first to recommend the adoption of an expenditure tax for India? A. K.N. Raj, B. Paul Krugman, C. Raj C. Chalahan, D. N. Calder। तो 31 नंबर क्वेश्चन होची D. N. Calder। 32 नंबर क्वेश्चन। Which of the following tax is levied by the state government only? Which of the following tax is levied by the state government? तो करेक्ट आंसर होची ए. एंटरटेनमेंट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन। द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ए. RBI, B.
प्लानिंग कमीशन, सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी फाइनेंस कमीशन। तो करेक्ट आंसर हो सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 34 नंबर क्वेश्चन, ए टैक्स लेविड अपॉन ए फर्म as a percentage of its value added, ए मेरिट टैक्स, बी VAT, सी टर्नओवर टैक्स, डी सेल टैक्स। तो करेक्ट आंसर हो बी VAT। 35 नंबर क्वेश्चन, ए प्रोग्रेसिव टैक्स wings more heavily upon the ए poor, बी वेजनर्स, सी फार्मर्स, डी रिच। तो करेक्ट आंसर हो रिच। 36 नंबर क्वेश्चन, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेफर्स टू ए द लेवल ऑफ रेट ऑफ टैक्सेशन, हु अल्टीमेटली पे द टैक्स, सी द ग्रोथ ऑफ टैक्सेशन, डी द वे इन which tax is collected। तो करेक्ट आंसर हो बी हु अल्टीमेटली पेज द टैक्स, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which tax cannot be shifted to others, which tax cannot be shifted to others, a excise duty, b sell tax, c entertainment tax, d wealth tax। तो करेक्ट आंसर हो सी एंटरटेनमेंट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिस्कल फेडरलिज्म रेफर्स टू ए शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बी ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इकोनॉमिक प्लान्स, सी डिविजन ऑफ इकोनॉमिक functions and resource among different layers of government, D none of these। तो करेक्ट आंसर हो सी डिविजन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन एंड रिसोर्स एमंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जवा, द प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस रेफर्स टू, Principle of sound finance refers to a maximum government spending, b minimum government spending, c revenue and expenditure balanced at the minimum level, d none of these। तो करेक्ट आंसर हो सी revenue and expenditure balanced at the minimum level। नेक्स्ट क्वेश्चन को जवा, the most important aim of fiscal policy in a developing country is a economic stability, b economic development, c regional balance, d none of these, b correct answer हो b economic development। correct answer economic development। 41 नंबर क्वेश्चन, the income of the government through all its source is called public expenditure, public revenue, c public finance, d none of these। तो करेक्ट आंसर हो बी पब्लिक फाइनेंस। 22 नंबर क्वेश्चन, मोडवेट मीन्स ए मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, बी मॉडरेट वैल्यू एडेड टैक्स, सी मॉडेस्ट वैल्यू एडेड टैक्स, डी मॉडर्न वैल्यू एडेड टैक्स। तो करेक्ट आंसर हो ए मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो 43 नंबर क्वेश्चन, प्राइमरी डेफिसिट मीन्स ए फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, बी रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, सी फिस्कल डेफिसिट प्लस रेवेन्यू डेफिसिट, डी बजेटरी डेफिसिट। तो करेक्ट आंसर हो ए फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। 44 क्वेश्चन, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज ए इंटरेस्ट रेट, बी एम्प्लॉयमेंट,
सी एक्सपोर्ट्स डी इंपोर्ट्स। तो करेक्ट आंसर होची बी एम्प्लॉयमेंट। 45 नंबर क्वेश्चन डेफिसिट फाइनेंसिंग इंक्लूड्स ए बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, बी इश्यूज ऑफ न्यू करेंसी बाय द गवर्नमेंट, सी withdrawal of fast accumulated cash balance by the government, D all the above। तो करेक्ट आंसर होची डी ऑल द above। 46 नंबर क्वेश्चन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज connected with a taxation, B expenditure, C public debt, D both A and B। तो करेक्ट आंसर होची बी एक्सपेंडिचर। 47 नंबर क्वेश्चन which of the following does not form the basis of sound finance, A Say's law, B assumption of full employment, C Ricardian equivalence theorem, D Lennon's fundamental rules। तो करेक्ट आंसर होची डी लेनॉर्स फंडामेंटल रूल्स। करेक्ट आंसर लेनॉर्स फंडामेंटल रूल्स। 48 नंबर क्वेश्चन इन द केस ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड द मनी बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑन ए मोर ऑन सेलर्स, बी मोर ऑन बायर्स, सी एंटायरली ऑन सेलर्स, डी एंटायरली ऑन बायर्स। क्वेश्चन होची इन द केस ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड द मनी बर्डन ऑफ द टैक्स। तो करेक्ट आंसर होची ए मोर ऑन सेलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन नंबर 49 व्हेन द सप्लाई इज मोर इलास्टिक द मनी बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑन ए मोर ऑन सेलर्स, B more on buyers, C entirely on seller, D entirely on buyers। तो करेक्ट आंसर होची B more on buyers। करेक्ट आंसर more on buyers। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर द इंडियन इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल, B indirect and proportional, C indirect and progressive, D direct and progressive। तो करेक्ट आंसर D डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव। तो ये थिला 50टी क्वेश्चन पार्ट 1 रे मु किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करछि एवं पार्ट 2 रे मध्य आउ 50टी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड करिवि एवं बहुत गुड़िए क्वेश्चन अच्छी आपण एथुरु देखंतु एवं निहाती भाव में एथुरु किछि क्वेश्चन आसीबो एवं वीडियोटी हेल्पफुल हो बोली मु आशा करछि। जदि आपण सब्सक्राइब करना ताहले मो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एभली वीडियो देखिया पे। थैंक यू फ्रेंड्स। ए थिला तो 50टी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन पब्लिक फाइनेंस रो। तो नेक्स्ट मु सेकंड पार्ट को प्रोवाइड करछि।